جنات کا کوٹھا جس نے دعا کی زندگی برباد کر دی، آخر اسے قبر میں پہنچا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعا کو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، یہ وہی میری دوست، میری کلاس فیلوز، ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، میٹرک تک ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دعا کی شادی ہو گئی۔ 8 سال بعد جب ہم نے دعا کو دیکھا تو میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ وہی میری دوست ہے جس کے حسن کے چرچے زمانے بھر میں تھے، جس کی بڑی سبز آنکھیں اور گلابی ہونٹ اور کالے لمبے لمبے بال تھے، جسے خدا نے اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول کی ساری لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھا کرتی تھی۔ جب ہم لوگ اسکول سے چھٹی کے وقت رکشے میں آتے تو بہت سارے لڑکے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ میں کہتی تھی دعا خدا کو مانو، تم اپنے چہرے پر نقاب ڈالو، تو وہ اتراتی تھی خدا نے جب حسن دیا ہے تو اسے میں کیوں چھپاؤں، نقاب میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس کے نخرے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ یہ غریب گھرانے کی عام سی لڑکی ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا لیکن دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھوکے سوتے تھے۔ دعا کے عجیب مزاج تھے، وہ اونچے خواب دیکھتی تھی، وہ کسی امیر لڑکے کے خوابوں میں کھوئی رہتی تھی، ڈاکٹر، انجینئر یا پھر کسی شہزادے کے خوابوں میں رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں غریب ضرور ہوں، قسمت پلٹتے دیر نہیں ہوتی، دیکھنا ایک دن میں شہزادے کے ساتھ جاؤں گا، شہزادہ آئے گا مجھے ساتھ میں لے کر جائے گا۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد میں فراختی فروخت تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی تھی، اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ خالہ نسیمہ پھر سے آ گئی۔ دروازہ کھولا دعا نے۔ ہاں بیٹا، میں تیرے لیے ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ جاؤ جاؤ خالہ، میں نے نہیں کرنی شادی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ہاں خالہ جی، یہ بیٹھی ہے نا ثنا، اس کی شادی کروا دو، یہ تو چھوٹی سی بچی ہے۔ ہاں خالہ، یہ تو چھوٹی بچی ہے، میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس مذاق میں ہم لوگ ہنسنے لگے۔ خالہ مسکرا کر آنٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ دعا کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ پھر میں نے دعا کو بہت تنگ کیا، وہ ہنسنے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا تمہیں میری بات بری لگی؟ نہیں، مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی، میں سوچ رہی ہوں زندگی مجھے اب کیا دے گی۔ دوسرے لوگوں کا پرانا کپڑا پہنتی ہوں اور باقی لوگوں کا بچا کچا کھانا کھا کر بڑی ہو چکی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں میرے جیسے غریب گھرانے کا میرے لیے رشتہ آ سکتا ہے، میرے لیے غریب گھرانے کا رشتہ آئے گا۔ یہاں بھی گھٹن ہو رہی ہے اور وہاں بھی مجھے گھٹن ہوگی۔ دل چھوٹا مت کرو، دعا اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ اس بار قسمت بہت مہربان ہو گئی تھی، دعا کے لیے ایک افسر کا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے، اچھی خاصی بڑی فیملی تھی۔ یہ اس شخص کی دوسری شادی تھی، پہلی بیوی بانجھ تھی اور بدصورت تھی۔ رشتہ ہو گیا لیکن ابھی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی غفار سے بہت بڑی تھی، کیونکہ غفار کے سپنے ایک چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کے تھے۔ دعا کی والدہ نے دعا سے پوچھا تو دعا نے ہاں کر دی، کیونکہ وہ ہر حال میں اس غربت سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ غفار ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا، کیونکہ وہ دعا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کا بیٹا تھا اور ایک افسر بھی تھا۔ کہنے لگی ثنا دیکھ، میں پہلی بار میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آیا ہے، میں اس رشتے کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ میں چاہتی ہوں امیر گھر میں میری شادی کر کے چلی جاؤں، پھر قسمت موقع دے یا نہ دے، میں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا کی منگنی پر میں نے اسے تیار کیا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن اس کا دولہا بھی دیکھا، ایک بڑی سی گاڑی سے اترا، اس گاڑی میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھا، مگر سادہ مزاج کا تھا، غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دعا اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، اکثر کہتی تھی غفار میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئے ہیں، مگر میں کالج میں جوائن ہو گئی، صبح کالج جاتی، شام کو ٹیوشن جاتی تھی، اب دعا سے ملنا کم ہو گیا تھا۔
6 माह के बाद दुआ की शादी हो गई। 6 माह के बाद वो मिलने आई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे कीमती लिबास और जेवर पहने हुए थे। इन्हीं दिनों में हमने मकान तब्दील कर दी। मेरे कॉलेज के करीब एक मकान मिला तो अब्बू ने लेना मुनासिब समझा। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब मैं दुआ से नहीं मिलती थी क्योंकि मेरा घर दुआ के घर से बहुत दूर हो गया था। एक दिन अचानक दुआ की वालदा का वफ़ात के बारे में हमें पता चला। हम लोग वहाँ गए। मेरी दुआ से आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मेरी शादी भी हो गई और मैं अपनी नई ज़िंदगी में खो गई। आज पहली बार उसे अस्पताल में देखा। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। शादी के बाद अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन इसे क्या हुआ, ये अस्पताल में पड़ी है। इतनी कमज़ोर हो गई थी। अभी दुआ के 2 बच्चे हो गए थे। उसके शौहर की दूसरी जगह तबादला हो गया। अपने शौहर के साथ चली जाती थी। किसी सरकारी रिहाइश में रहती थी या अपने लिए किराए का घर लेते थे। इसके शौहर की दूसरी जगह तब्दीली हो गई। वो अपने शौहर के साथ चली जाती। वहाँ भी सरकारी रिहाइश पर रहते थे। उसने किराए की एक कोठी ले ली। उसमें 3 कमरे थे, 2 ओपन थे, एक को ताला लगा हुआ था। जब उसने अपने शौहर से पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है, दुआ ने अपने शौहर गफ़ार से कहा, हमें ये कोठी खोलनी चाहिए क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं, इसीलिए ज़रूरी है। तो गफ़ार ने कहा, नहीं नहीं, मालिक मकान ने मना किया है, सख्ती से इस कोठी को नहीं खोलना चाहिए। शायद इसीलिए मना किया होगा, उसमें बहुत सारे सामान होंगे। शौहर की बात सुनकर वो चुप हो गई। उसके शौहर की 3 रातों की ड्यूटी लग गई थी। पूरे घर में वो अकेली रातें गुजारने लगी। उसे डर महसूस होने लगा था। एक रात गहरी नींद में सो रही थी। उसे खिड़की टूटने की आवाज़ें आने लगी। वो घबराकर उठी। उसने देखा कोई ना था। उसने पानी पीकर दूसरे कमरे में जाकर देखा तो बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। यूं ही वो अपने कमरे में लौटी तो कमरे में देखा उसकी चीख निकल गई। वो चीखती चिल्लाती बच्चों के कमरे में आ गई। माँ की चीख की आवाज़ सुनकर बच्चे रोने लगे। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बच्चों को लिपट गई। डर के मारे नींद ना आ रही थी। जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ सहूलत नाम की कोई चीज़ ना थी। इस घर के आसपास कोई घर ना था। वो चीखती चिल्लाती बाहर निकलती है और किसी से मदद लेती। वो चुपचाप सारी रात जागने लगी। जब इसका शौहर सुबह ड्यूटी से वापस आया, उसने सारी हकीकत अपने शौहर को बता दी। मुझे लग रहा है ये तुम्हारा वहम होगा क्योंकि अकेली बैठी हो। ये तुम्हारे जहन में आया होगा। कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अच्छा, मेरे ख्याल से तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। इसने पूरे कमरे को घूर कर देखा। एक खिड़की टूटी हुई थी। शीशे पूरे कमरे में फैला हुआ था। उसने देखा और अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की। बहरहाल ये कोई चोर होगा। उसने अंदर आने की कोशिश की, इसीलिए खिड़की तोड़ गई। बहरहाल मैं सुबह एक चौकीदार का इंतज़ाम करता हूँ। एक औरत मुलाजिमा तुम्हारे पास रखती हूँ जो दिन रात को तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हें डर भी नहीं लगेगी। अगली रात जब वो सो रही थी उसे एक चीख नर्स सुनाई दी। वो उसकी आंख खुल गई। उसने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया और हिम्मत करके वॉशरूम में चली गई। उसने वज़ू किया ताकि अल्लाह ताला से मदद मांग सके। जब वॉशरूम के पास पहुंची उसे टोंटी नलके से पानी बहता हुआ आवाज़ सुनाई दिया। दिल को मजबूत कर लिया। उसने सोचा कि हो सकता है बच्चों ने टोंटी खोलकर छोड़ दी हो। उसने वॉशरूम में पैर रखा ताकि पानी बंद कर सके। तभी कमरे में अचानक एक बू फैल गई। वो बू इतनी तेज़ थी वो बर्दाश्त भी ना कर पा रही थी। तभी वो भागकर अपने बच्चों के कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। तभी उसे गैलरी से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। हिम्मत करके उसने गैलरी में झांक कर देखा। उसकी चीख निकल गई। कई बौने वहां पर अजीब शक्ल वाले फिर रहे थे। दुआ जहां खड़ी थी वहां पर बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। वो उठ गई। उसने देखा सुबह होने वाली थी। कहीं से अजान की आवाज़ें आने लगी। उसने वज़ू किया और मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। ए अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है जिसे मैं देखकर मुझे बहुत डर लगता है। या अल्लाह पाक, तू हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रख दे। या अल्लाह पाक, ये कौन से जिन भूत वगैरह हैं।
इस बात का कौन जवाब देता। वो बच्चों की आफियत की दुआ मांगने लगी। सुबह के 8 बजे उसका शोहर आया। वो ज़ारो कतार रोने लगी और अपने शोहर से कहने लगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कभी नलका खुलने की आवाज़ें आती हैं तो कभी गैलरी में बोनों की चलने की आवाज़ें आती हैं। ये कौन सी मखलूक है, मुझे डर लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे वापस लेकर चलें। तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें मेरा साथ देना है क्योंकि रात की ड्यूटी मेरे लिए ज़रूरी है। मैं हर रात को जाऊँगा, अपनी ड्यूटी पर निभाऊँगा। वो एक चौकीदार और एक औरत को लेकर आ गए जो काम वाली मुलाजिमा बनकर तुम्हारे साथ दिन रात रहेगी, तुम्हारा साथ देगी। फिर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर दुआ के जान में जान आ गई। रात के 8 बजे वो औरत आ गई। वो औरत उम्र में 40-45 साल की थी। दुआ ने उसके सोने की जगह किचन में बना दी। वो चौकीदार भी गेट पर चारपाई रखकर सो गया। दुआ बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो जाकर अपने कमरे में सो गई। उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा एक सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी आया। उसने कहा, ए बच्ची, इस घर में तू ना रह, इस घर को छोड़कर चली जा। उस आदमी के हाथ में वो कुरान पाक है जो दुआ के रुखसती के वक़्त उसके माँ ने दिया था। वो आदमी कुरान पाक दुआ को देने लगता है। दुआ जल्दी से उठ जाती है, उस ख्वाब के बारे में सोचने लगती है। वो आदमी उसे कुरान पाक दे देता है। दुआ उठकर वज़ू करके कुरान पाक जो दूसरा दुआ के पास पड़ा हुआ था उसने उठाकर वो पढ़ लिया। उसके बाद जब अलमारी में रखने लगी तो किचन से मासी की आवाज़ें आने लगी। मासी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी। दुआ जल्दी से भागकर किचन में गई तो मासी किचन में नहीं थी। दुआ ने सारे कमरे देखे लेकिन मासी वहाँ नहीं थी। तभी अचानक दुआ की नज़र उस बंद कमरे पर पड़ी। उसके दरवाजे के बाहर मासी खड़ी थी। मासी, क्या हुआ? तुमने तो मुझे किचन से आवाज़ दी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो घबराई सी बोली, बीबी जी, आप ये दरवाज़ा खोलकर देख लें, यहाँ क्या है। यहाँ पर किसी के सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे बंद कमरे में कोई रो रहा हो। बीबी जी, आप देखें ना, क्या है यहाँ पर। मैं यहाँ पर नहीं खोल सकती, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। मासी, आप आयतल कुर्सी का विर्द कर लो। दुआ मासी को लेकर किचन में चली गई। वहाँ कुछ पकने की खुशबू आ रही थी। बीबी जी, ये क्या माजरा है? मैं यहाँ नहीं सो सकती। अच्छा, तुम ऐसा करो, बच्चों के कमरे में सो जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारा बस्तरा बच्चों के कमरे में लगा देती हूँ, तुम बच्चों के साथ सो जाओ। बच्चों के साथ सोना अच्छा है। मासी को बच्चों के साथ सुला दिया और दुआ अपने कमरे में आ गई और कुरान पाक बराबर में रख दिया ताकि डर भी ना लगे और सुकून से सो भी सकूं। लेकिन रात भर नींद ना आई। सुबह जब गफ़ार घर आया, दुआ ने सारी हकीकत उसके गोशो गवार में कर दी। एक वहम नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। गफ़ार एक सोच में पड़ गया और गफ़ार ने चौकीदार से मशवरा किया क्योंकि वो इसी इलाके में रहने वाला था। और चौकीदार ने कहा, साहब जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये कोठी जिनों के नाम से मशहूर है। इस कोठी को जिनों का कोठा कहा जाता है। यहाँ पर जो रहने के लिए आता है चंद ही दिनों में वापस चला जाता है। आपकी हिम्मत है जो आप यहाँ पर बीबी जी को अकेला छोड़कर ड्यूटी पर चले जाते हैं। मेरा मशवरा है, आप कहीं और जगह ले लें, ये जगह ठीक नहीं है, आपकी जगह छोड़ दें। गफ़ार ने जवाब दिया, मैं तबादले की कोशिश करता हूँ। अगली रात 2 बजे वही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दुआ ने उठकर दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर कोई ना था। उसने गैलरी में झांक कर देखा, कोई ना था। उसने कमरे में सोफे पर बैठ गई और अचानक लाइट चली गई। उसने ज़ोर से मासी को बुलाया लेकिन आवाज़ मासी तक ना गई। उसने टेबल के पास मोमबत्ती पड़ी हुई थी, उसको रोशनी कर दी और बच्चों की तरफ जा रही थी। उसकी निगाह गैलरी में पड़ी, वहाँ पर हल्की हल्की सी रोशनी थी और बंद दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, वो खुला हुआ था। उसे ख्याल आया, बंद कमरे में ताला लगा हुआ था, वो कहाँ चला गया। वो अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। अपने बच्चों के कमरे में आ गई। वो मासी जो बच्चों के साथ सो रही थी वहाँ मौजूद ना थी। उसने वॉशरूम चेक किया लेकिन मासी वहाँ भी ना थी। उसने दूसरे कमरे चेक किए लेकिन मासी वहाँ ना थी। दिल में ख्याल आया कि कहीं मासी ने ताला नहीं खोला। मुमकिन हो सकता है इस नौकरानी के पास चाबी हो, वो मालिक मकान के सामानों की चोरी करने के लिए अंदर ताला खोलकर गई होगी। कमरे के नज़दीक गई तो कमरे के अंदर चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। तभी पीछे से मासी ने पुकारा, बीबी जी,
तभी दुआ ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ताला कहाँ है? ताला मुझे वापस दो मासी, मैं ताला लगा देती हूँ, ताला मुझे वापस दे दो। बीबी जी, ताला तो लगा हुआ है, कहीं आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? दुआ ने पीछे मुड़कर देखा, ताला लगा हुआ था, जैसे कि पहले दिन से लगा हुआ था उस तरह ताला बिल्कुल ठीक था। दुआ परेशान रह गई। दुआ को पसीना आने लगा। उसने मासी से पूछा, मासी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वो कहने लगी, मैं छोटी बीबी का दूध गर्म करने के लिए गई थी। छोटी बीबी जी दूध मांग रही थी नींद में, मैं दूध गर्म करने के लिए गई थी। दुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मासी के हाथ में फीडर था, इसीलिए दुआ ने मासी को समझाया, तुम बच्चों के कमरे में जाकर सो जाओ, और ख़ुद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अगले दिन गफ़ार के यहाँ मेहमान आ गए थे। गफ़ार ने कहा, ये मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, इस इलाके में रहते हैं, इनकी अच्छी तरीके से खिदमत करनी है। इन मेहमानों में एक बुज़ुर्ग औरत थी जिसका नाम आसिया था। उसने दुआ से कहा, बेटी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम्हारा ये घर बहुत भारी है, यहाँ अल्लाह के दूसरे मखलूक का भी बसेरा है, बेहतर इसी में है तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, कहीं और घर ले लो। आंटी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब बना देंगे, इस घर को छोड़कर चली जाओ। इसके गुजरे हुए वाक़यात उसने उस बूढ़ी औरत को सब बता दी। इसके बाद वो कहने लगी, मेरे शौहर के तबादले की कोशिश में लगे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। आसिया बीबी एक नेक औरत थी। उन्होंने कुछ वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताए और कुछ तावीज़ भी लिख कर दी। बेटा ये तावीज़ तुम अपने सब घर वालों के गले में डाल दो। दुआ काम करने में मसरूफ़ थी। उसने तावीज़ अलमारी में रख दिए। 3 दिन तक आसिया बीबी और उसके खावंद इसी घर में रहने लगे थे। 3 दिन तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। चौथे दिन जब वो लोग चले गए, दुआ को तावीज़ का ख्याल आया। उसने बहुत तलाश की लेकिन तावीज़ ना मिले। आसिया बीबी जो वज़ाइफ बताकर चली गई वो पढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में उसके शौहर को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। गफ़ार के जाने के बाद दुआ ने रात का खाना खाया और मासी से कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आप बच्चों को सुला देना। मुलाजिमा ने काम निपटा दिया। उसके बाद बर्तन धोकर खुद भी सोने के लिए चली गई। रात के किसी पहर दुआ की आंख खुली। उसने देखा कमरे का दरवाज़ा बंद था, जो कि उसने रात को बंद किया था लेकिन अभी खुला था। अभी वो देख रही थी कि उसके पास किसी के आह भरने की आवाज़ आई। जब वो घबरा कर उठी, उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक शक्ल का आदमी उसके बराबर में सोया हुआ था। डर से चीख पड़ी, वो बेहोश हो गई। 3 दिन तक होश ना आया। बिलाखिर एक दिन आंख खुली। अब वो दुआ ना रही, अल्लाह के दूसरे मखलूक के हिस्से में जा चुकी थी। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, किसी दम दारू वाले को दिखाओ, लेकिन दुआ गिर गिर कर बेहोश हो जाती थी। दुआ कुछ नहीं खाती थी। बिलाखिर जब खाने लगती तो इतना खाती थी कि उसका पेट नहीं भरता था। उसका शौहर ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता था। उसे दुनिया का होश ना रहा। घर वालों को पहचानती तो कभी ना पहचानती थी। अपने बच्चों को उठा उठा कर फेंकती थी। उसके शौहर ने उसे उसके भाभी और भाई के हवाले कर दिया। अपने बच्चों को गफ़ार ने अपने पास रखा, वो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दुआ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए उसे अस्पताल में लेकर आ गए थे। ये वही दुआ थे। उसे अपने हुस्न पर गुरूर था। उसके लंबे स्याह बाल, उसके चेहरे पर गुलाब जैसी रौनक थी। आज उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और गुलाब जैसा चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया था। वो आज एक अलग मखलूक लग रही थी। मैं थोड़ी देर उसके पास खड़ी रही। उसे पुकारने लगी, दुआ दुआ देखो तो सही, कौन आया है। उसे मेरी तरफ नहीं देखा। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह पाक, इसे कौन सी बीमारी लग गई है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। या अल्लाह पाक, ये तो हमेशा कुरान पाक पढ़ती रहती थी, तेरे से दुआ मांगती थी। या अल्लाह पाक, तू ही इसे शिफा दे दे। अल्लाह ही जानता है इसे कौन सी हवा लग गई है जिसने इसका मरते दम तक पीछा ना छोड़ा। एक दिन मैं अम्मी के घर आई। अम्मी ने मुझे घर में पता चला दुआ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। सच कहा किसी ने, कब्रिस्तान के पास हमेशा घर लेना नहीं चाहिए।
اگر لینا چاہیے تو گھر کو بہرحال دیکھنا چاہیے وہ مکان ٹھیک ہے یا نہیں، جلد سے جلد بدل کرنی چاہیے۔ یہ سب راز اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔